Okay. Shall I start? Yes. Yes, Prarthi. Okay. So, a very good evening to all. I'm Prarthi, and I, along with all BJSF members, welcomes you again in this live talk session. So, like always, let me first introduce you all to Bindas Jeev Social Foundation. BJSF is a non-profit organization which aims to help the needy and spread happiness. It was founded by a respected Sir Mr. Rajiv Verma and was formally registered in the year 2018. Many events have been conducted by BJSF, such as blood donation camps, health checkup camps, charities, and much more. And after this pandemic took place, BJSF is conducting free online yoga classes in the morning and fun session for kids in evening. So this was all about BJSF. So now let's move towards the session. So in today's session, we are going to talk about the problem that has trapped a major population these days. जी हाँ, मैं बात करूंगी मैं अपने गेस्ट के साथ बात करूंगी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो आज की तारीख में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या तकरीबन 450 मिलियन है पूरे विश्व में। तो आइए आज इस सेशन में हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि हमें जरूरत है ताकि हम इससे उभर के आ सके। जो जो लोग प्रॉब्लम से जो लोग इस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, क्योंकि जरूरत है हमें तो बस जागरूक होने की। So now let's welcome our keynote speaker guest for today. So today we have with us Dr. Anshu Shukla, Assistant Professor VKM, BHU Banaras. A very warm welcome to you, ma'am. So, ma'am, the very first thing that I would like to know from you is what does mental health actually mean to you? Ma'am, are you there? Thank you so much. Yeah. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Actually, I was trying to upload the video. That's why the PPT which I was having. When we talk of the word mental health, as you all know that you started with the term mental health. Mental health in layman language on if we say it's all about how all we think, feel and behave. That is the major thing of that. I'm just trying to upload the thing, but Ma'am, you can send the PPT to just me. just 2 minutes. I I think there's net problem. That's why we are not able to get it. Uh, Ma'am, you can share the PPT to me. I can share it. If अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए PPT व्हाट्सएप पे।
Ma'am, please unmute yourself, Anshu ma'am. Your video is not visible, ma'am. Ma'am, you can share the video with Sangeeta ma'am. She can share it from her window. Anshu ma'am, am I audible to you? Sangeeta ma'am, could you please contact her and ask? One minute, Prachi. Hello? 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 Sangeeta ma'am, please unmute Sarita ma'am. Okay. हाँ संगीता मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैम को प्रॉब्लम हो रही है, तो कह रही है अभी कोशिश करते हैं आने की। अच्छा मैम, वहाँ ओके बारिश बहुत हो रही है, तो कॉल करा ओके मुझे उन्होंने। हाँ, ओके कह मैम, रही है अभी। ओके सो yes, please be patient.
क्वेश्चन मैम, आपकी बात हुई क्या अंशु मैम से? हाँ हाँ, मेरी बात हुई। कोई इशू आ रहा है मैम? हाँ, ये एक्चुअली वहाँ पे ना पूरा दिन हो गया है बारिश होते हुए, तो नेटवर्क का इशू है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मैम उनसे बोलिए एक बार ये कि एक बार फोन को पूरा स्विच ऑफ करके हाँ वो then on उसने करें। हाँ वो पूरा स्विच ऑफ करके वो दूसरे नेटवर्क से जियो से ट्राई कर रही है, तो उसने बोला कि बस मैं 5 मिनट में अगर कनेक्ट कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग अगर कल के लिए रख पाए तो ठीक है मैम, वेट कर लेते हैं हाँ, मैम का। बारिश है तो इस बस वजह आप से थोड़ी। हाँ मैम, हाँ उनसे पूछ लीजिएगा कि कहीं वो अनदर नेम से तो नहीं आएंगे, क्योंकि फोन नंबर से भी कई लोग आए हुए हैं, मतलब जैसे आएगी तो गैलेक्सी J2, तो आप एक बार पूछ, हाँ ये पूछ लीजिएगा ताकि मैं ऑन कर दूं, वरना फिर पता नहीं चल पाएगा। यस मैम। हाँ अंशु शुक्ला ने ज्वाइन किया तो है। जी मैम। अपने नाम से ही किए। अच्छा अंशु, प्रार्थी किस नाम से? मुझे दिख नहीं रही है मैम। प्रार्थी है, अंशु शुक्ला मैम नाम से ही है। डॉक्टर अंशु शुक्ला है फ्रॉम बनारस। ओके ओके, हाँ मैम प्लीज अनम्यूट। हाँ अनम्यूट। Hi, I'm audible. Yes ma'am, you are. Yeah. Yes ma'am. Yes ma'am. Thank God. मैम प्लीज कंटिन्यू। आप स्क्रीन शेयर करने वाली थी। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं भी होगा तो कोई नहीं, अब बिना उसके भी कर लेंगे, बिकॉज इट्स वेरी आई नो टाइम लिमिटेशन इज हियर, सो बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। Okay ma'am, then let's continue with my very first question. Ma'am, I think screen share हो गई है. If you want. Yes ma'am. Yes ma'am. आप लोग देख पा रहे हो? जी ma'am. That's good, yeah. That's good. I think. Parthi, you were asking for the mental health. Yes ma'am. I was just discussing कि when I talk of word mental health, जनरली हम लोग जो है मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बाइलिंगुअल होंगी मैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम लाइक दिस बैकग्राउंड. So when we talk of the mental health, it's all about how we feel, how we think and how we behave. तो जैसे हम सोचते हैं या महसूस करते हैं या बिहेव करते हैं, that is all about mental health. Sometimes we use the term mental health to mean the absence of mental disorder. कई बार हम लोग बस ये देख लेते हैं कि इसको कुछ मानसिक गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये मेंटल हेल्थ इसका ठीक है. So what I think of mental health is कि our mental health always affect our daily living, our relationships and even our physical health. और ये दोनों तरीके से होता है. इट्स अ बाई डायरेक्शनल, कि कई बार हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, वो इन चीजों को प्रभावित करता है, और हमारा जो ये सब चीजें हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. सो अगर मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, is it visible? Yes ma'am, it is visible. Yes ma'am. So today we'll discuss about coping with mental health, the unseen battle. Why I'm saying this unseen battle? Because जब से हम पैदा होते हैं ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये चलते रहता है, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो जनरली लोग हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से लेते हैं, जबकि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज इंक्लूडेड इन द हेल्थ. तो अभी तक क्या है, मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, और बहुत सारे ऐसे रहा कि हमने फिजिकल हेल्थ को ज्यादा ध्यान में रखा. इवन सोशल हेल्थ जो है हम वो बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं देते हैं.
तो व्हेन वी टॉक ऑफ मेंटल हेल्थ, तो उसमें जो है वो हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सब्जेक्टिव वेलबींग है, सेल्फ एफिकेसी कैसी है, मतलब हम कितना अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, हमारी क्या एफिशिएंसी है, ऑटोनोमी है, कॉम्पिटेंस है, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। और हम जो है वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ को अलग नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये नहीं कह सकते कि मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ या किसी एक को इग्नोर करना चाहिए। तो चूंकि जो इंडियन और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें फैमिली सेटअप वाली बात हुआ करती थी कि एक परिवार है और उसमें इतने सारे लोग साथ में रहते हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज वर नॉट इतना ज्यादा उनका इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो हमारे कल्चर में इनबिल्ट था कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते थे। मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू से जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है, पर चूंकि अब हम लोग थोड़ा न्यूक्लियर सेटअप और न्यूक्लियर सेटअप छोड़, जब और एक स्टेप आगे आ गए, हम इंडिविजुअलिस्टिक सेटअप की तरफ आगे आने लगे हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक सेटअप में थोड़ा मेंटल हेल्थ की बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा मैंने कहा आपसे कि मेंटल हेल्थ जो है वो एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस है। तो मेंटल इलनेस जो है वो 3 फॉर्म्स में विजिबल होती है। दैट इज अभी जो मैंने कहा था कि थिंकिंग में, फील में और बिहेवियर में। तो ये जो चीज है हमारी, और मेंटल हेल्थ में कई सारे, हम इसको अलग से नहीं कह सकते कि ये इसका रीजन है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बहुत बार साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, बहुत बार सोशल और बायोलॉजिकल रीजन की वजह से भी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होता है। एक चीज जो मैं बहुत इम्पोर्टेंटली बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसमें अब जो हमारी जनरेशन है, अगर हम अब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे तरीके हैं, अभी आगे डिस्कस करूंगी मैं कि कैसे आप अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। पर मैं जो पेरेंट्स हैं या जो अपकमिंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप अपने बच्चों में बचपन से एक हैबिट डालिए कि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेसेस और आगे बढ़ने वाली हैं, चैलेंजेस और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उन चैलेंजेस से बच्चे कैसे कोप अप करेंगे वो हम पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं उन्हें। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। एक चीज जो मैं कहूंगी कि मेंटल हेल्थ में जो है कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं, पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको हम सुधारा नहीं जा सकता। तो जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर कोई गरीब है, बहुत ज्यादा परेशान है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशन है, पर्सनल लेवल ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीजें हम सुधार सकते हैं। पर जेंडर, एज और एथनिसिटी ये हम बदल नहीं सकते, इसलिए ये मॉडिफाइबल कैरेक्टर नहीं है। और मेंटल हेल्थ कई बार इस रीजन की वजह से भी आता है। और उसकी बात करूं मैं तो मेल और फीमेल की बहुत सारी स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडीज देखी गई कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन इन मेंटल हेल्थ। Sangeeta, you want to say something? You want to ask something? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, you're raising your hand now. That's why I was asking. Ma'am, I'm liking your thought. That's why I'm raising the hands up. Okay. Thank you so much. So, when we talk of mental health, nutrition, education, your housing, your work, your healthcare, your livelihood, and of course your coping strategies, these all are important. और जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं नीचे पॉवर्टी लिखी है मैंने, वो पॉवर्टी का मतलब गरीबी इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, वो गरीबी का मतलब है आप जो है वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं तो आप न्यूट्रिशनली पॉवर्टी के लाइन पर हैं, आप एजुकेशन अच्छी नहीं है आपकी तो आप उस पॉवर्टी लाइन पर हैं। तो आई एम टॉकिंग ऑफ, ये थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिएगा कि पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन है। यहाँ पर पॉवर्टी का मतलब है कि आप बाकी जो भी चीजें मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है आप उन चीजों में गरीब हैं, और वो गरीबी आप खुद दूर करेंगे, वो गरीबी कोई और इकोनॉमिक एक्शन आप दूर करने नहीं आएगा। तो जो कोपिंग स्ट्रेटेजी वाली बात है, वो कोपिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पेरेंट्स ही बच्चों में डाल पाएंगे। अदरवाइज